Guys, listen carefully. CLAT 2026 is just around the corner, and these last few days are not just about studies, but also to make sure to not make any stupid exam day mistakes. Exam day mistakes like what? Because students see every year several students lose their marks just because they didn't know one simple thing. Now, simple things what? Like what? Simple things like, sir, what should I carry with myself on exam day? Sir, what should I wear on my exam day? Sir, can I write on my question paper? Sir, will we get extra OMR sheets? So I know students that at this point of time when exam is just 1 week away, you guys are filled with several doubts like this. So this video is made for that purpose only, to solve all your exam related doubts and to make sure that everything goes right on 7th December, right? And this video is made for that purpose only, and at the end of this video you will get a complete clarity over everything. You will not be left with any doubt, and if you still had any doubt, you can just let me know in the comment section. So I'll be solving that doubt afterwards as well. So students, with this intent in mind, let's start with our session. So our session for today is CLAT 2026 exam day doubts masterclass. So all your doubts will be cleared here. ठीक है, जितने भी आपको डाउट्स है ना कि सर मेरे को क्वेश्चन पेपर में मतलब मैं क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर सकता हूँ, सर मुझे क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या एक्स्ट्रा शीट्स मिलेंगी, सर फुल स्लीव पहन के जाना है या हाफ स्लीव पहन के जाना है, सर एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट में निकालूं या कलर्ड फॉर्मेट में निकालूं। तो सारे डाउट्स जो है ना A to Z जितने भी डाउट्स है आपके, चाहे OMR शीट के अराउंड हो, चाहे आपका ड्रेस कोड के अराउंड हो, हम वो सारे के सारे डाउट्स आज यहाँ पे क्लियर करेंगे, राइट? सो विद दिस स्टूडेंट्स, let's start with our session, your final clarity before the exam day, right? So students, first of all, why this video matters for you, why this session is important for you, because आपको तो लग रहा होगा सर अब सब पढ़ ही चुका है, सब कुछ कर चुके हैं, अब क्या ही करना है बेटा। as I just mentioned कि we have to make sure that on the exam day you don't have any unnecessary stress. अब स्ट्रेस कैसे आ सकता है आपको? या तो आपको सेंटर के बारे में ठीक से नहीं पता है, ठीक है, तो आप इंश्योर करो कि आप सेंटर एक आध दिन पहले ही होके हो आओ अपने, अगर आसपास ज्यादा दूर नहीं आपको सेंटर पड़ रहा है तो एक दिन पहले ही वहां जाके आप विजिट कराओ, ट्रैफिक का आइडिया ले। तो मतलब काफी सारी चीजें होती हैं जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अभी मैं लिस्ट आउट नहीं करूंगा एक एक चीज, हम लोग थ्रू आउट द वीडियो उनका डिस्कशन करते ही रहेंगे, राइट? तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो ही जाएगा कि व्हाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट स्टिल just as an introduction, so what all we are going to discuss. So we are going to discuss that every year student lose marks because of last minute confusion, center panic, then wrong assumption, खुद से ही कुछ भी सोच लेना कि अरे यार फुल स्लीव नहीं पहन सकते या हुडीज नहीं पहन सकते, मतलब अब पहन सकते हैं नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे, बट काफी सारी चीजों को आप खुद ही एज्यूम कर लेते हो, राइट? देन OMR मिस्टेक्स, OMR में गलतियां कर देते हो, ठीक है, तो बहुत कॉमन है, OMR में गलतियां होना बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स, बट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि आपसे वो गलती ना हो, ठीक है। देन स्मॉल रूल्स दैट यू नेवर चेक, ठीक है, फिर बाद में कहते हो अरे हमें तो पता ही नहीं था, तो वो सारी माइन्यूट चीजें हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, राइट? सो व्हाट वी आर सॉल्विंग टुडे, आज हम लोग क्या करेंगे, डाउट सॉल्विंग करेंगे, बट डाउट सॉल्विंग नॉट अपॉन the topics or about the sections, but upon general but very important things, very general, very minute but extremely important things like कि is underline allowed, which pen to use sir, ball pen, gel pen या फिर pencil, ठीक है, what to wear on exam day, what to carry on exam day, then exam center clarity, then how early you should reach, ठीक है, then What if panic hits, अगर जस्ट इन केस पैनिक आ जाता है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं तो फिर क्या करें, ठीक है। देन हाउ टू स्टार्ट द पेपर, मीन्स एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन हियर, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड बी विद मी हियर फिजिकली एंड मेंटली एंड साइकोलॉजिकली एज वेल. दिस इज गोइंग टू बी अ game changer video for you. Trust me on this and just be with me here, right? So first thing students, to understand what are the first and foremost and most important things which you should know right now is that CLAT has no strict dress code, ठीक है, कोई आपको strict dress code नहीं है वहां पे. CLAT allows underlining in the passage students. CLAT आपको passage में underline करना allowed करता है. पहले कंसोर्शियम ने एक नोटिफिकेशन डाला था थोड़े टाइम पहले कि underlining is not allowed, but then they themselves clarified कि yes, underlining is allowed below the passage or below the line, but you cannot mark the correct answer. या फिर आप किसी ऑप्शन में वहां मार्क नहीं लगा सकते हो, बट आप जो पैसेज पढ़ रहे हो आप वहां पे कुछ अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है, दैट यू कैन डू, राइट? सो दैट इज अलाउड. ये कंसोर्शियम ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया था. देन CLAT सेंटर्स वेरी
so very, so always prepare for the strictest version. अब आप अपने आप को ना प्रिपेयर ऐसे ही करो कि आपको अंडरलाइन करने की जरूरत ना पड़े, उस पे से डिपेंडेंसी खत्म करो. आई नो कि दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इवन आई डिड माई सेल्फ, ठीक है, आई इवन नीडेड टू डू दैट, बिकॉज वो ना बिना अंडरलाइन के फ्लो बन जाता है, बट आप अगर अंडरलाइन करते हो तो एक अटेंशन ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है, ठीक है, जो आपको बाद में आंसर आई नो कि सॉल्व करने में हेल्प मिलती है. अंडरलाइन अलाउ कर रखा है, बट ना सेंटर टू सेंटर वेरी करता है. कोई कोई सेंटर करने देता है, कोई कोई सेंटर नहीं करने देता है, जबकि गाइडलाइन में करने दे रहा है कंसोर्शियम, बट वो कभी कभी ना सेंटर की खुद की भी चीजें होती हैं, खुद की डिस्क्रिप्शन होती है, तो फिर वहां पे आप बहस नहीं कर सकते हो. तो मेक श्योर कि, और आप अंडरलाइन भी करो तो पेंसिल से करो, ताकि कोई ऑब्जेक्शन हो तो इरेज कर पाओ, ठीक है. तो मेक श्योर टू कैरी वन पेंसिल एज वेल. सो दीज 3 पॉइंट्स सॉल्व 50% ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ द एस्पिरेंट्स, राइट. देन मूविंग अहेड इज अंडरलाइनिंग का. अब रियल रूल क्या है, ठीक है, अंडरलाइन का क्या सीन है, मतलब सर क्या अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो एक बार उसको क्लियरली समझ लेते हैं. सो यू कैन अंडरलाइन इन द पैसेज, ठीक है. देन यू कैन सर्कल इंपॉर्टेंट वर्ड्स. सपोज you encountered any important word which you think is important and might be asked in some form in the question, so you can underline that. Then you can use light strokes, हल्के हल्के strokes, यानी बहुत गहरे गहरे नहीं, ठीक है, हल्के strokes, गहरे गहरे एकदम नहीं, ठीक है. Then यूज पेंसिल सेफली, ठीक है, पेंसिल का यूज करोगे तो फायदा रहेगा. इवन मेक इट अ हैबिट, देन व्हेनेवर यू आर अंडरलाइनिंग एनीथिंग इन यू नो इन एनी बुक और इन एनी पीडीएफ, फिजिकल फॉर्म पीडीएफ, सो मेक श्योर कि आप पेंसिल की हैबिट डालो, वहां पेन अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है. देन दिस यू कैन. देन व्हाट यू कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते हो, तो मार्क ऑप्शंस नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर टिक नहीं कर सकते, या फिर आसपास ऑप्शंस के अराउंड कोई शेप नहीं बना सकते हो, ठीक है. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर not doing this, because this is not permitted and you cannot do this, but this you can do, right. Then moving ahead is about the rough work, कि सर रफ वर्क के लिए क्या हमको एक्स्ट्रा शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो देखो, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन बुकलेट होगी ना, उसी में आपको आगे 2 शीट्स, मतलब क्वेश्चन बुकलेट में आपको स्पेस मिल जाएगा, जितने में आपका मतलब डीआई भर का जो रफ वर्क है वो आप कर पाओगे उसमें, ठीक है. तो क्लैट गिव्स नो एक्स्ट्रा शीट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर एंड रिमेंबर दिस. Then all rough work is to be done inside the question booklet, ठीक है. मार्जिन्स या जो एम्प्टी स्पेस होता है वहां आप कर सकते हो, बट डू नॉट टीयर पेजेस, ठीक है. सेंटर बिकम्स स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, एंड दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली. आई हैव अपीयर्ड फॉर सेवरल एग्जाम्स, ठीक है, लॉ एग्जाम्स एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम लॉ एग्जाम्स, एंड आई हैव अपीयर्ड फॉर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट, राइट. तो आई नो कि कहां पे कैसी गाइडलाइन है. तो दिस इज माय पर्सनल गाइडलाइन. इवन व्हेन आई अपीयर्ड फॉर ILI एंट्रेंस एग्जाम, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट फॉर LLM, तो वहां पे भी वो, क्योंकि ऑफलाइन ही होता है क्लैट की तरह, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट वही सेम क्लैट वाली गाइडलाइंस थी. तो मेरे अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूं कि पन्ने मत फाड़ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है सेंटर उसके लिए, ठीक है. देन व्हाट पेन टू यूज. अब ये आता है कि सर अच्छा ठीक है, ये सब क्लियर हो गया कि रफ वर्क कैसे करना है, अंडरलाइन क्या कितना कर सकते हैं. अब ये बता दो सर कि पेन से करना है, पेंसिल से भरनी हो OMR शीट, क्योंकि स्कूल में तो हम पेंसिल से करते थे, कभी कभी पेन से करते थे. तो क्लैट में आपको बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, ठीक है, बॉल पेन से, जेल पेन से नहीं, फाउंटेन पेन से नहीं, किसी भी फैंसी पेन से नहीं, बॉल पेन से, ठीक है. 0.7 mm का जो बॉल पेन आता है, रिक्टोमीटर जंबो जेल इज माय फेवरेट पेन, बॉल पॉइंट वाली कैटेगरी में. तो I used that for my exams and for my exam attempts, and luckily वो मेरे लिए अच्छा ही रहता था, मतलब I cleared almost every exam which I appeared for with, and I used that pen only. तो ठीक है, make sure कि आप बॉल पेन ही यूज करना 0.7 mm का, ठीक है. तो यूज अ पेन ओनली, यूज अ बॉल पेन ओनली, ठीक है. नो जेल पेन, नो इंक, नो फैंसी टिप्स वाले, ठीक है. रिकमेंडेड क्या है, अ सिंपल 0.7 mm बॉल पेन फिल OMR बबल्स फास्टर एंड क्लियरर, ठीक है. और आपको जो सर्कल होता है ना, OMR का जो सर्कल होता है स्टूडेंट, ये इसी के अंदर ही भरना है आपको, ठीक है. यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसी में भरो और इस सर्कल के बाहर ना जाए आपका, वरना वो आंसर ना आपका डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है. लाइक सी द वे आई एम फिलिंग इट, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अंदर पूरा अच्छे से भरो, ठीक है. सर्कल के एजेस के बाहर आपका ना निकले वो, ठीक है. तो आई होप कि यू कैन सी दिस, इफ इट इज विजिबल टू यू. दिस इज द वे यू हैव टू फिल द OMR शीट. पूरी अंदर से भर दो, अंदर कोई गैप ना रहे, बट मेक श्योर कि आप बाहर उसको ना मार्क करते हो ले आओ, ठीक है. दिस इज द वे यू हैव टू फिल द OMR शीट. देन दिस इज द रिकमेंडेशन. देन ट्राई टू कैरी 3 पेन्स, ठीक है. मतलब ऑब्वियसली एक है, 2 आपके बैकअप के लिए रहेंगे, बिकॉज
सेंटर कभी देता है कभी नहीं देता, तो हमें अपने सेंटर पे डिपेंड नहीं होना है, हम अपना खुद पे डिपेंड रहेंगे और खुद से करेंगे, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज व्हाट टू कैरी रियल चेकलिस्ट। नाउ व्हाट यू शुड बी कैरिंग ऑन योर एग्जाम डे, ठीक है। तो यू शुड बी कैरिंग एटलीस्ट 2 एडमिट कार्ड्स, ठीक है, 2 एडमिट कार्ड लेके चलना एटलीस्ट। ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करा रहे हो या कलर्ड में करा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कलर्ड में भी करा सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में भी करा सकते हो, ठीक है। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है, आधार की एक फोटोकॉपी, कम से कम 2 फोटोकॉपी, ठीक है, 3-4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज होता है ना जो आप एल्मेनेक में लगाते हो, अपनी डायरीज में लगाते हो, जो होती है पासपोर्ट साइज वाली वो, और 2-3 बॉल पेन जो अभी हमने डिस्कस किया, ये लेके चलना, ठीक है। पानी के लिए ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके चलना जिसमें ग्राफिक्स वगैरह डिजाइनिंग थोड़ी कम होती है, ट्रांसपेरेंट वाली। और कुछ कुछ सेंटर्स में देखो वॉचेस भी परमिट नहीं करते हैं, डिजिटल तो बिल्कुल भी नहीं परमिटेड है, एनालॉग कहीं कहीं पे परमिट रहता है, कहीं कहीं पे सेंटर नहीं लेने देता है, ठीक है। तो आपको टाइम के लिए देखो, मेरा ये रिकमेंड रहेगा कि आप वॉच मत ही पहन के जाना, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम बताते हैं कि इतना टाइम बाकी है, 1 घंटा बाकी है, आधा घंटा हो चुका है, मतलब जैसे हर इंटरवल में आपको बताया जाता है कि हाफ एन आवर इज कंप्लीटेड, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा बाकी है। बट अगर पहन के जा रहे हो तो एनालॉग वॉचेस जाना, ठीक है, डिजिटल की तो किसी केस में कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। देन रिकमेंडेड एक्स्ट्राज में क्या क्या है, तो ये चीजें तो आपको एनी हाउ लेके जानी है, ठीक है, आप देख लो एक बार ठीक से। देन रिकमेंडेड में जो मेरी साइड से पर्सनल रिकमेंडेशन है, अपनी स्कूल आईडी भी ले जाओ, एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड एक बैग में रख लो, ठीक है, मतलब लेके तो आप ऑलरेडी 2 जा रहे हो, एक आध और रख लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। देन नाउ व्हाट नॉट टू कैरी, अब क्या हम नहीं लेकर जाएं, तो स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल वॉचेस नॉट एट ऑल परमिटेड, जेल पेन्स नॉट परमिटेड, ज्योमेट्री बॉक्स नॉट परमिटेड, ना आपको नीड होगी। आपसे कोई वहां पे मेंसुरेशंस के या फिर कोई बहुत ज्यादा ज्योमेट्री वाला नहीं पूछ रहा है, डीआई पूछते उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। मेटल पेंसिल बॉक्स नहीं अलाउड है। किट आप ले जा सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट किट होती है ना, चेन वाली, जिप चेन वाली, वो आप ले जा सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। देन कैप्स नहीं अलाउड है, कैप टोपी पहनने का कोई मतलब नहीं वैसे भी सेंटर में। देन बिग ज्वेलरीज लड़कियों के लिए, बड़ी बड़ी ज्वेलरी आप पहनना अवॉइड करना, वैसे भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक स्टूडेंट की तरह आपको लगना चाहिए, आप किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जा रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेयरिंग एनीथिंग, बट स्टिल इफ यू आर प्लानिंग टू वेयर समथिंग तो मेक श्योर दैट इज नॉट वेरी बिग, ठीक है। देन बेल्ट्स, ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये लड़कों के लिए बेल्ट बिल्कुल मत पहन के जाना, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बेल्ट उतरवा लेते हैं, वो उतरवा के हम अपने पास ही रख लेते हैं, तो बाद में आपका काम बढ़ेगा, फिर ढूंढते फिरोगे, उससे अच्छा पहन के ही मत जाओ, या अगर पहन के जा रहे हो तो वहीं सेंटर के बाहर अपने गार्जियन को आप दे दो, ठीक है। तो बेल्ट्स मैनी सेंटर्स रिमूव देम, ठीक है। देन बैग्स, तो बैग्स तो वैसे भी नहीं ले जा सकते हो, जो आप बैग ले भी जा सकते हो तो वो बाहर ही सबमिट करवा लेते, ठीक है। तो मोस्ट सेंटर्स डोंट अलाउ इनसाइड रूम, ठीक है। अच्छा, काफी लोग बैग के साथ ना आपको सेंटर के अंदर भी एंट्री नहीं देते हैं, तो अगर जैसे आप गार्जियन के साथ जा रहे हो तो अपनी वही कार में रखवा दो, ठीक है, या फिर इवन नहीं भी ले जाओ तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या क्या ले जाना है मैंने दिखा दिया, वो आपकी जेब में या फिर नॉर्मल उसमें भी फिट हो जाएगा, ठीक है। अब जेब से आप कहोगे सर पहन के क्या जाना है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिनिमलिज्म इज इक्वल्स टू सेफ्टी, जितना मिनिमल आप सामान रखोगे उतना सेफ रहोगे। नाउ इट्स अबाउट द ड्रेस कोड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉक्ड अबाउट, कि सर क्या पहन के जाएं, क्या फुल स्लीव पहन सकते हैं, क्या हुडी पहन सकते हैं, सर आपने जैसी डेनिम जैकेट पहनी है वैसी पहन सकते हैं, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, देयर इज नो फैशन शो, कोई, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो फैशन शो, दिस इज नॉट अ फैशन शो। आप एक एग्जाम देने जा रहे हो तो यू नीड टू बी मेक योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली। देन नो ओवरसाइज पॉकेट, जो बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट वाली हुडीज होती है वो ना पहन के जाना, हुडी पहनना ही मत, ठीक है, नो हुडी ड्रामा, आप अपना नॉर्मल से जैकेट वैकेट पहन लेना। अगर ज्यादा ऑब्वियसली बात है 7 दिसंबर है, ठंड का मौसम है, बट एक मेरी जो आपको पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ज्यादा कपड़े पहन के चले जाओ, बट अगर आप कार वगैरह से सेंटर तक आए हो, पेरेंट्स के साथ आए हो, गार्जियन के साथ आए हो, तो मैक्सिमम चीजें उन्हीं को दे दो, और अपना आप जैसे कि एक गरम टी शर्ट या गरम शर्ट आपने पहन ली, ठीक है, फुल स्लीव की, जैकेट वैकेट पहन ली, कुछ इस टाइप का आप पहन के रखना जिससे पॉकेट्स वगैरह कम और कम ग्राफिक्स वाली चीजें हो, ग्राफिक्स ज्यादा ना हो। जैसे माई जैकेट यू कैन सी इज प्लेन, ठीक है, तो ऐसी जैकेट आप प्लान आउट करना, ज्यादा भारी भरकम कुछ नहीं, हुडी उडी तो बिल्कुल मत पहनना, ठीक है। देन वियर क्लोथ्स दैट डोंट डिस्ट्रैक्ट यू, डिस्ट्रैक्ट आप कहोगे सर कपड़े से कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अगर भारी भरकम कपड़े ज्यादा पहन लोगे तो फिर तो वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देने में जो कंफर्ट होता है वो नहीं मिलेगा ना, तो बी कंफर्टेबल, आप जैसे अपने घर में कंफर्टेबल रहते हो ना वैसे रहना है। डोंट अट्रैक्ट चेकिंग, चेकिंग बार बार अट्रैक्ट ना हो, ऐसे कपड़े आपको पहनने की जिससे बार बार आपकी चेकिंग ना हो।
एंड आपको ज्यादा स्लो ना करें, ठीक है। स्लो इन द सेंस कि भाई जो मैंने बोला, भाई हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स, डी डे में हर चीज का इम्पैक्ट होता है। भारी कपड़े पहनोगे तो एक वो भारी भारीपन लगेगा ही, ठीक है। तो वियर सिंपल शर्ट, टी शर्ट, वुलन, कंफर्टेबल जीन्स, ट्रैक पैंट्स पहन लो, ठीक है। लाइट जैकेट अगर रिक्वायरमेंट है, और नॉर्मल शूज, आई वुड रिकमेंड स्लीपर्स, अदरवाइज नॉर्मल शूज, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू अवॉइड, तो बेल्ट्स को तो आप एनी हाउ अवॉइड करो, ठीक है। देन हैवी जैकेट विद मेटल जिप्स को अवॉइड करो। फैशन एसेसरीज कोई मतलब नहीं पहनने का, कड़ा वड़ा होता है ये सब पहनने का कोई मतलब नहीं, कड़ा वड़ा मत पहन के जो है ना। देन हुडीज विथ बिग पॉकेट्स, ठीक है, तो ये भी अवॉइड करना है आपको। देन ड्रेस टू फोकस नॉट टू इम्प्रेस, दिस इज माई टैग लाइन फॉर यू। देन मूविंग अहेड इज फूड वाटर मेडिसिन। तो क्या सर मैं दवा ले जा सकता हूं, मैं XYZ चीज का पेशेंट हूं, मुझे बीच बीच में जरूरत लगती है, तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अलाउड क्या क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड है, ठीक है। टैबलेट्स अलाउड है, टैबलेट्स इज नॉट टैब बट टैबलेट्स, मेडिसिन वाली टैबलेट्स वो अलाउड है, ठीक है। इनहेलर अलाउड है, बेसिक मेडिसिन अलाउड है। नॉट अलाउड इनसाइड एग्जाम हॉल, तो चॉकलेट्स वगैरह नहीं अलाउड है, एनर्जी बार्स नहीं अलाउड है, पैक्ड फूड नहीं अलाउड है। तो मेक श्योर टू ईट समथिंग लाइट बिफोर लीविंग योर होम, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज मोबाइल फोन का सर क्या सीन है, मोबाइल फोन क्या सेंटर पे ले जाके सेंटर में जमा करा सकते हैं या घर से ही ना लेकर चले, क्या करें। तो स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का सिंपल रूल है कि फोन्स गो टू द सिक्योरिटी काउंटर, जहां पे आपकी जांच होती है वहीं पे वो आपका जांच से पहले ही एक ट्रे देते हैं, उसी में आपका फोन, बेल्ट, ये सब जो चीजें होती है वहीं जमा हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हो जाती है, लेकिन कोई लॉकर गारंटी नहीं होती है, किसी किसी सेंटर में रहती है लेकिन हर जगह नहीं होती है। कोई लॉकर आपको गारंटी नहीं होता कि हाँ ठीक है आप लाओ यहाँ रख लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सो ब्रिंग अ गार्जियन इफ पॉसिबल, गार्जियन रहेगा तो आप उनको दे सकते हो, उनको जमा करा के रख सकते हो, वो रखे रहेंगे अपने पास, है ना। देन द नेक्स्ट थिंग इज रीचिंग द सेंटर। सर सेंटर का क्या सीन है, कितनी देर पहले पहुंचना होता है, कोई क्या ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर 2 बजे पेपर है तो 12 बजे सेंटर आ जाओ या 1 बजे आ जाओ। तो स्टूडेंट्स ट्राई टू रीच 45 से 60 मिनट्स पहले पहुंच जाओ, एटलीस्ट 1 घंटे का मार्जिन तो लेके चलना चाहिए। इवन मेरा भी ये मानना है, अगर 2 बजे का पेपर है तो आप 1:15 तक एटलीस्ट सेंटर पहुंच जाओ, 1:15 तक, ठीक है। ताकि टाइम से आप आ जाओगे तो आपको करेक्ट ब्लॉक आपका दिख जाएगा, करेक्ट फ्लोर आपको पता चल जाएगा, वो बाहर सब लगे होते हैं ना शीट्स, तो वहां पे आपको अपना रोल नंबर, जो आपको अलॉटेड नंबर है वो नंबर आपको दिख जाएगा कि अच्छा सी ब्लॉक में सेकंड फ्लोर में यहाँ से यहाँ के रोल नंबर वाले जा रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे आना है। तो ये सब चीजें ना बहुत भीड़ भी होने लगती है, तो आप टाइम से पहुंच जाओगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दिख जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कोई नया सेंटर है तो एटलीस्ट 1 दिन पहले ही आप वहां चले जाओ, ठीक है। मान लो आपकी सिटी में कोई नया, आप कोई ऐसा सेंटर आए जिससे आप फेमिलियर हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बट अगर कोई ऐसा सेंटर है जिस जगह से आप फेमिलियर रहे हो, तो 1 दिन पहले ही वहां जाके देख समझ आओ कि हाँ ऐसा रास्ता है, ऐसा है, ये रास्ता रहेगा, ये पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से आना बेटर रहेगा। ये सब चीजें ना थोड़ा सा प्रायर आप करके रखोगे तो ये डी डे में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। देन मूविंग अहेड इज नाउ इनसाइड द हॉल, ठीक है। एक तो चीज हो गई कि सेंटर के बारे में। अब एग्जाम हॉल के अंदर के क्या प्रोटोकॉल रहेगा, तो एक बार आप जब बैठ जाओगे तो मेक श्योर कि कोई बातें ना हो, ठीक है, कोई सीट की अदला बदली नहीं, ठीक है, नो लीनिंग, इधर उधर लीन नहीं करना है। देन नो सिग्नलिंग, कोई सिग्नलिंग नहीं करनी है। देन नो टचिंग बुकलेट बिफोर परमिटेड, बिफोर द you get the permission to open your booklet, before that you don't have to even touch that. So keep your mind calm and quiet, right? Then let's talk about the most sensitive part and the most important part, ठीक है, OMR। कि सर OMR शीट का क्या सीन है, क्या एक्स्ट्रा OMR मिलेगी, अगर OMR शीट मुझे गलत मिली है, फटी हुई मिली है, तो मैं क्या करूंगा। सर अगर मैंने पहले ऑप्शन बी भर दिया, मार्क कर दिया OMR में, बाद में मुझे पता चल रहा है नहीं ऑप्शन डी है, तो क्या मैं बी को कैंसिल करके डी वाले में डाल सकता हूँ, डी में दोबारा फिल कर सकता हूँ, क्या मैं एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन फिल कर सकता हूँ, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज ओनली बॉल पेन, ठीक है। अब मान लो आपने सी ऑप्शन मार्क कर दिया, बाद में आपको पता चल रहा है डी है, तो ये नहीं कि आप सी में व्हाइटनर लगा के उसको मिटाने लग गए, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना। यू डोंट हैव टू डू दैट एट ऑल। वंस यू हैव फिल्ड द बबल, दैट आंसर इज फाइनल। अब उसके बाद आप उसे काटो पीटो, दूसरा मार्क करो, वो आंसर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा बबल फिल किया है या कोशिश करी भरने की, तो वो आंसर ही कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नो व्हाइटनर, नो ओवर राइटिंग, कि पहले आपको लगा कि नहीं सी है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं डी है, फिर लगा नहीं सी ही है, तो दोबारा से सी को कर रहे हो, ओवर राइट नहीं करना है,
कोई स्क्रैचिंग नहीं करनी है और बबल्स को बिल्कुल क्लीन तरीके से अच्छे से भरना है, ठीक है। डबल चेक योर रोल नंबर प्लस बुकलेट कोड, ठीक है। अच्छा, ओएमआर शीट में क्या होता है कि जब आप अपना रोल नंबर डालते हो, बुकलेट कोड वगैरह डालते हो, वो भी आपको मार्क करना होता है। तो मेक श्योर कि जब व्हेनेवर यू आर फिलिंग योर ओएमआर शीट, जस्ट मेक श्योर यू टू कीप योर एडमिट कार्ड अलोंग साइड। तो आप एडमिट कार्ड देख देख के ही वो डिटेल भरना है, ठीक है। जो एडमिट कार्ड में आपका डिटेल है, नेम है, सारी चीजें, वो सब बिल्कुल साइड में रखो और ये ओएमआर शीट रखो और यहीं पे देख देख के बबल फिल करते जाओ, ठीक है। तो ये चीज हो गई। देन the same thing I mentioned, that keep admit card next to OMR while filling details, so mistakes are not corrected by anyone, ठीक है। एक बार कोई मिस्टेक हो जाए फिर वो करेक्ट नहीं हो सकती, मशीन में चेक होते हैं OMR शीट्स। तो मेक श्योर कि आप पहली बार में सब कुछ ठीक से भरो, ठीक है, इंक्लूडिंग योर इन्फॉर्मेशन एंड देन योर आंसर्स। देन दी 110 मिनट रियलिटी। सर ये 110 मिनट्स की क्या रियलिटी है? सर पेपर तो 120 मिनट्स का होता है, पेपर तो सर 120 मिनट्स का होता है। तो स्टूडेंट्स, द रियलिटी बिहाइंड दिस इज कि yes, the official timing is of 120 minutes, but the real effective time which you get to give the exam is around 110 से 115 मिनट। 5-10 मिनट तो आपके इन्विजिलेटर चेकिंग, साइन, ठीक है, इंटरप्शन, इन्हीं सब में निकल जाता है, ठीक है। ये शीट भरो, ये दिखाओ, साइन करा लो, ठीक है। तो ये अटेंडेंस शीट में तो काफी टाइम तो ना आपको उसी में चला जाता है, बिकॉज जो मैं बता रहा हूँ रियल इफेक्टिव टाइम आपका इतना ही रहता है, क्योंकि बाकी टाइम कहाँ चला जाता है? ओएमआर डिटेल्स, बुकलेट कोड फिल, देन रोल नंबर फिल, ठीक है, देन आपका इंस्ट्रक्शंस। आप कहोगे कि सर ये सब चीजें तो पहले ही हो जाती होंगी, मतलब 2 बजे से पहले ही हो जाती होगी। हो तो पहले जाती है, लेकिन वो बार बार ना वो एक इन्विजिलेटर के ऊपर भी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो काफी बार ना वही चीज बार बार चेक करते हैं। तो 5 से 10 मिनट तो बेकार होता ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। देन वही इन्विजिलेटर इंटरप्शन दैट आई मेंशन्ड। सो प्लान योर पेपर अकॉर्डिंगली, ठीक है, मेक श्योर टू प्लान योर पेपर अकॉर्डिंगली। एंड वी नीड टू एंश्योर स्टूडेंट्स की ना कोई हम लोग ना मेजर वायलेशन ना करे किसी चीज का। मतलब वी नीड टू बी मेक श्योर कि हमारा जो इन्विजिलेटर के साथ मतलब कोई मेजर पंगा ना हो, ठीक है, ताकि हमारा ना मिनिमम टाइम वेस्ट हो उस चीज में। वरना अगर हम उन्हीं के साथ डिस्कशन, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, इन्विजिलेटर बहुत गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ आपका वहां अधिकार है, आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हो, बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा ना अपना तरीका ठीक हो आपका, कि प्लीज बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू बिल्कुल बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू दैट एनवायरमेंट कि आप 2 घंटे अच्छे से अपना पेपर दो शांति से। कभी कभी इन्विजिलेटर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप उनको प्यार से कन्फ्रंट कर सकते हो कि सर प्लीज शांत रहो, आई एम गिविंग माई एग्जाम एंड दैट इज डिस्टर्बिंग माई फोकस देन, ठीक है। तो अंडर प्रेशर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनसाइड द हॉल? अब मतलब प्रेशर में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो इनसाइड द हॉल यू मे फेस नॉइज, ठीक है, यू मे फेस इन्विजिलेटर्स टॉकिंग, यू मे फेस डिस्टर्बेंस, समवन आस्किंग डाउट्स, फुस्सा फुस्सी जो होती है एक दूसरे से, ठीक है, समवन पैनिकिंग नियर बाय। तो यू नीड टू स्टे काम, यू नीड टू स्टे बिल्कुल शांत एंड स्टे इन योर ओन बबल। अपने जोन में रहो और फर्क मत पड़ने दो आपके जोन के बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिकॉज ये सोच लेना कि आपके पूरे साल की मेहनत आपके टेम्परामेंट और आप कैसे बिहेव कर रहे हो एग्जाम हॉल में उस पर डिपेंड करेगा। किसी और से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने आप से मतलब है। तो मेक श्योर कि आप अपने जोन में रहो। ये सब कुछ अगर हो रहा है, ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज, इफ मिसप्रिंटेड क्वेश्चन अपीयर्स, कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है या क्वेश्चन में कोई फॉल्ट होता है तो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो डोंट पैनिक, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए गलती हुई है, ठीक है। हाँ कभी कभी मान लो अगर क्वेश्चन में कोई फैक्चुअल एरर है तो सबके लिए है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो वो आपका क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाओ इन चीजों से, ठीक है। तो यू जस्ट रेज योर हैंड, इन्विजिलेटर विल नोट इट एंड यू जस्ट कंटिन्यू योर राइटिंग, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन इज टेकन लेटर बाय द कंसोर्शियम। अच्छा, ये थोड़ा सा उस कंटेक्स्ट में बारे में है कि अगर मान लो क्वेश्चन में कोई फॉल्ट आ गई तो कोई अगर कंसेप्चुअल एरर भी होती है तो इन्विजिलेटर उसे नोट करेगा, बाद में वो चीजें जाएंगी। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, क्वेश्चन कैंसिल आउट हो गए थे, तो वो सबके लिए वो चीजें, उससे सबको फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं आप ही को पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जो मैंने अभी यहाँ पे 2 चीजें डिस्कस करी कि सपोज इफ देयर इज अ फैक्चुअल एरर इन द क्वेश्चन पेपर, तो इट दैट एरर इज नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर एवरीवन एल्स, ठीक है। तो उससे सबको ही फर्क पड़ेगा। सपोज आप ही के क्वेश्चन पेपर में कोई गलती है तो just raise that issue silently, properly, and that issue will be resolved, right? मान लो क्वेश्चन पेपर में कोई गलती होती है तो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन पेपर आपका, ठीक है। नाउ सपोज इफ समथिंग गोज रॉन्ग कि सर मेरा पेन खत्म हो गया बीच में, ठीक है, यही चीज होती है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो मैं
डिटेलिंग में एक एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने खुद फेस की है मेरे स्टूडेंट लाइफ में, तो मैंने वो नोट रखा है इन चीजों का कि अब जब कभी whenever I'll get an opportunity to guide others, so I'll make sure कि these were the hurdles which I faced during my exam days. So I need to make sure कि you guys are not going through the same thing. That's why I have prepared everything in so much detail. So suppose pen stop working, तो आप अपना एक्स्ट्रा लेके जा ही रहे हो, मैंने कहा ना 2-3 पेन लेके चलना एक्स्ट्रा बॉल पॉइंट वाले, तो वो ले जाना। OMR अगर सपोज डैमेज हो जाती स्टार्ट से पहले, आस्क फॉर रिप्लेसमेंट बट मेक श्योर ना डैमेज हो। उनकी साइड से डैमेज में है तो वो खुद ठीक करेंगे, आपकी साइड से भी होगी तो भी कर देते हैं रिप्लेस, बट OMR शीट्स ना गिनती से आती है स्टूडेंट्स। मान लो 50 बच्चे एक क्लासरूम में पेपर दे रहे तो वो गिन गिन के आती है, एक एक हिसाब होता है तो वो देना पड़ता है हिसाब पूरा इन्विजिलेटर को, तो वो उसके पार्ट पे थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप खुद ना डैमेज करना, फट जाए गलती से इधर उधर, मान लो आप आंसर गलत भर दो फिर कहो दूसरे, तो मिलेगी भी नहीं, मिलेगी भी तो ठीक है, मतलब अगर OMR में गलती है तो मिल जाएगी, बट अगर आपने आंसर गलत भरा है फिर आप नहीं मांग रहे हो तो वो नहीं होता, ठीक है। देन इफ समवन नियर यू इज पैनिकिंग, जस्ट इग्नोर पोलाइटली एंड यू स्टे इन योर जोन, ठीक है। आपके इर्द गिर्द में अगर कोई पैनिक हो रहा है तो उसको मत देख के, उसको देख के अपनी हालत मत खराब करो, रादर जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, राइट। देन सर विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, सर पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट कर दो स्टूडेंट्स। नो वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है। मुझे जो ये साइज आ रहा है ये जरूरी नहीं है कि सबको ही आ जाएगा, आपको भी यही आएगा, किसी और को भी आएगा, सबका अपना अपना एक साइज होता है, अपना अपना एक कह सकते हैं मूड होता है, टेस्ट होता है, प्रिपरेशन होती है। बट इफ यू आस्क फ्रॉम मी, तो फॉर मी द परफेक्ट स्ट्रेटेजी शुड बी टू अटेम्प्ट द जीके सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। व्हाई? Because students, I have also mentioned it in my previous sessions and I have already always told my students कि जब आप पेपर देने जाते हो, बिकॉज क्लैट इज अ वेरी हैवी रीडिंग बेस्ड एग्जाम, ठीक है, इट इज वेरी हैवी रीडिंग बेस्ड एग्जाम एंड आपको काफी ज्यादा रीड करना होता है, सारे सेक्शंस में काफी ज्यादा रीडिंग, डीप रीडिंग होती है, तो ऑब्वियसली रीडिंग एग्जॉस्ट योर माइंड, एग्जॉस्ट यू मेंटली। तो अगर आप पहला लीगल, लॉजिकल या इंग्लिश, ये 3 सेक्शन या इन तीनों में से कोई एक सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते तो आप अपने ब्रेन पे तो मैक्सिमम कह सकते हैं एनर्जी तभी उसकी स्पेंड कराए ले रहे हो, क्योंकि भाई रीडिंग करने में आपको टाइम, वो एनर्जी तो लगती है ना। तो व्हाट माय सजेशन इज कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग द एग्जाम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर ब्रेन इज टोटली एक्टिव, नॉट एट ऑल एग्जॉस्टेड एंड इज वर्किंग इन इट्स बेस्ट एनर्जी, राइट। तो आप अगर जीके से स्टार्ट करोगे, बिकॉज रेस्ट अदर सेक्शंस दे आर बेस्ड अपॉन एप्टीट्यूड, लीगल इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन एप्टीट्यूड, आपसे कोई रोट मेमोराइजेशन वाली चीज नहीं, रादर आपसे आपका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन में आपसे ही प्रिंसिपल कहा जा रहा है कि लॉ अप्लाई करो, तो दिस इज बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन। देन इंग्लिश इज अगेन बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन, लॉजिकल रीजनिंग इज बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन। क्वांट्स का वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता, क्वांट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट व्हाट माय सजेशन इज कि जीके से स्टार्ट करो, बिकॉज जीके इज ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, जिसमें आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा ब्रिक्स में इस साल कौन ऐड हुआ, अच्छा इस साल इंडिया की रैंकिंग क्या थी, अच्छा हाँ इस साल क्या था, तो आपको उसमें याद करना पड़ रहा है चीजों को, ठीक है। तो याद करोगे तो दिमाग में जोर डालोगे। अब अगर दिमाग थका रहेगा तो या तो उसे ठीक से याद नहीं आएगा या देर में याद आएगा। तो इफ यू विल अटेम्प्ट अ जीके सेक्शन फर्स्टली, तो दिस इज एडवांटेज दैट यू विल गेट अ वेरी हेल्दी फंक्शनल ब्रेन, वेरी एनर्जेटिक ब्रेन। उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी सेक्शंस में आओ, लीगल में आओ, ठीक है, सेकंड, फिर जहां पे सबसे ज्यादा ब्रेन का यूज होना है वहां पे आओ लीगल में, फिर इंग्लिश, LR एंड इन लास्टली क्वांट। सो स्टार्ट विद, बट दिस इज माय सजेशन, व्हाट यू हैव टू डू इज आइदर यू कैन फॉलो दिस और यू जस्ट स्टार्ट विद योर हाईएस्ट एक्यूरेसी सेक्शन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है, आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है। देन फर्स्ट 5 मिनट मेथड, ये क्या होता है सर, फर्स्ट 5 मिनट्स क्या होता है स्टूडेंट? सी, फर्स्ट 5 मिनट्स आर दी only minutes which are going to decide your next 115 minutes. जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे ही फर्स्ट 5 मिनट्स आर द लास्ट 5 मिनट्स वी कैन से। तो these 5 minutes decide your entire paper. Your goal, it should be to breathe properly, calmly, don't rush behind anything, warm up your brain, थोड़ा सा ब्रेन को अपना वार्म अप करो, सॉल्व फर्स्ट पैसेज कामली, बिल्कुल शांत तरीके से पहला पैसेज सॉल्व करो, देन बिल्ड मोमेंटम स्लोली, धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करो। इफ द फर्स्ट 5 मिनट्स गो राइट, देन रिमेनिंग 115 मिनट्स गो स्मूथली, एज आई जस्ट मेंशन, राइट। तो बिल्कुल शांत तरह से आपको पेपर देना है। देन सिली मिस्टेक्स का प्रिवेंशन, अब ये क्या होता है, सो मैच क्वेश्चन नंबर बिफोर बबलिंग। स्टूडेंट्स ये अक्सर कर, जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स खोते हैं, गलती करते हैं, बिल्कुल स्टूपिड गलती क्या
कि आपने क्वेश्चन पेपर में तो देख लिया कि हाँ सी क्वेश्चन है, आपको पता भी कि हाँ सी आंसर करेक्ट है, आप बबल बना लेते हो डी में। अब ये कैसे होता है कि मान लो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 55 का है ऑप्शन ए, ठीक है, अब आप उसको 55 में नहीं करके 56 में ए मार्क करने लग रहे हो, आपको लग रहा है 55 में कर रहे हो, कर आप लेकिन रियलिटी में 56 में रहो। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि आप कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा ऑप्शन भर रहे हो, ठीक है। 55 अगर क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हो और 55 का आंसर डिटरमाइन किया तो OMR में भी 55 में ही बबल बनाना है, 56 में नहीं या 54 में नहीं, ठीक है। तो मैच क्वेश्चन नंबर बिफोर बबलिंग, रीड ऑप्शन कंप्लीटली फुल्ली, ठीक है, डोंट कॉपी रॉन्ग लाइन, बबल एट द एंड ऑफ ईच पैसेज, ठीक है। यानी कि जब आप पैसेज पढ़ लो ना, पूरा पैसेज पढ़ लो, उसके बाद ये नहीं कि आपने पैसेज पढ़ लिया फिर आपने एक क्वेश्चन देखा, मान लो आपने एक पैसेज पढ़ा फिर आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को बबल बनाने लग जाओ, ये भी कर सकते हो, बट द बेटर स्ट्रेटेजी इज कि आप पहले पांचों आंसर डिटरमाइन कर लो। अब आप कहोगे सर आपने तो क्वेश्चन पेपर पे आंसर मार्क करने से मना किया था, बिल्कुल छोटा सा लाइट मार्क अपने लिए आप बना सकते हो, ठीक है, पेंसिल से, वो भी जो इन्विजिलेटर को भी ना दिखे और आपको भी समझ में जाए, मतलब दिस इज द स्ट्रेटेजी विच आई यूज्ड, ठीक है। और जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी कि मेरा ही सजेशन रहेगा कि अगर एक पैसेज में 6 क्वेश्चन आ रहे तो पहले 6 के आंसर आप खुद देख लो क्या है, फाइनल कर लो। मान लो 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का डी है, 4 का सी है, 5 का ए है, 6 का बी है, ठीक है। तो अब 1 का ए है, ये आपने 6 के 6 आंसर फिगर आउट कर लिए कि ये आंसर है। अब आप या तो उनको मार्क कर लो आंसर क्वेश्चन पेपर में चुपके से धीरे से साइड में, वो नहीं करना चाह रहे हो तो आप कहीं एक जगह लिख लो 1 का ए, 2 का बी, ठीक है, बाद में मिटा देना और फिर उनको आप ना फिर अटेम्प्ट करो बबल करने, फिर जाओ कि अच्छा 1 का ए, 2 का बी, ये नहीं कि आपने पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा फिर क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर रहे हो फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा होता है और इसमें गलती करने का थोड़ा सा स्कोप ज्यादा होता है, ठीक है। रेस्ट इट इज अपॉन यू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। नॉट आफ्टर ईच क्वेश्चन, तो बबल एट द एंड ऑफ ईच पैसेज, नॉट आफ्टर ईच क्वेश्चन, दिस सेव्स अराउंड योर 5 to 10 मार्क्स एंड दिस इज practical based on my own personal experience as well as on the experience of many of my previous students as well, right? Then last 7 days strategy क्या होनी चाहिए सर, what should be I doing for the last 7 days? So just attempt 1 mock daily इसी टाइम फ्रेम में, ठीक है, जो 2 से 4 एक्चुअल टाइम होता है, एंड मेक श्योर टू डू मॉक एनालिसिस एज वेल। बिना एनालिसिस के मॉक्स देने का स्टूडेंट कोई पॉइंट नहीं है, तो मेक श्योर यू आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी मॉक प्रॉपरली। देन रिवाइज योर मिस्टेक्स, कहां गलती करी, क्यों गलती करी, उसी को एनालाइज करना है, ठीक है। देन एक क्विक जीके रिवीजन करो, ठीक है, प्रैक्टिस अंडरलाइनिंग ऑन पेपर, देन यूज एनालॉग वॉच, ठीक है, देन स्लीप प्रॉपरली, अपनी नींद आप प्रॉपर रखो, देन कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए थे शुरुआत की स्लाइड में उसको आप इस बीच में रेडी कर लो, एंड डोंट चेज एनी न्यू टॉपिक, ठीक है, अभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं है, एंड डोंट चेज र्यूमर्स। बहुत अफवाहें फैलेंगी स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं इस बीच में बहुत अफवाहें फैलेंगी। इट इज माई ड्यूटी टू एंश्योर कि इफ देर इज एनी ऑथेंटिक और जेनेरिक अपडेट आई विल लेट यू नो दैट माई सेल्फ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट चेज एनी र्यूमर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैंपल पेपर में AR आ गया तो AR आने वाला है, भाई जब कंसोर्शियम ने सिलेबस में पूरे साल नहीं रखा तो अब कैसे एकदम से AR दे देगा, सैंपल पेपर पे AR आने से कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड यू कैन बेट मी ऑन दिस, AR पे बेस्ड कोई फुल फ्लैश पैसेज नहीं आने वाला, ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्वेश्चन आएगा लेकिन फुल फ्लैश पैसेज नहीं आने वाला, ठीक है। देन दिस शुड बी योर डेली रूटीन फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। नाउ लास्ट 24 आवर्स में मुझे क्या करना है सर, अब एग्जाम कल है, आज मैं क्या करूं, तो डू नॉट गिव अ मॉक, अब मॉक मत देना, लास्ट वाले डे मत देना, ठीक है। डोंट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर, डोंट कंपेयर योर स्कोर्स एट ऑल कि यार मैं इतने में ही रह गया, बगल वाला इतना ला रहा है, ठीक है, एंड डोंट डिस्कस एनी रूमर्स और केओस, ठीक है। देन व्हाट यू शुड बी डूइंग, हल्का हल्का रिवीजन रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल इंश्योर करो प्रिपेयर्ड है, अच्छे से सब रेडी है, आराम से नींद लो, एंड विजुअलाइज एग्जाम कामली। विजुअलाइज मतलब कि अपने आपको ऐसा सोचो, फील करो कि यू आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, और अपने माइंड में सोचो कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, मेंटली आप अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करो, राइट। देन ऑन एग्जाम मॉर्निंग, अब सर एग्जाम मॉर्निंग में मुझे कुछ आप कहना चाहोगे, तो सिंपली just wake at your normal timing because you are CLAT aspirant, so I believe कि you guys have been waking early at this point of time for the last some months, several months obviously, 6-7-8 बजे तक उठ ही रहोगे obviously, 10-11-12 बजे उठने वाला बंदा CLAT क्या ही निकालेगा, तो obviously आपको एक सुबह टाइम से उठने की तो हैबिट है ही, तो wake at your normal timings, have a light breakfast, हल्का सा उपमा वगैरह या कुछ हल्का खा लो, इडली विडली, no junk, कैरी एवरीथिंग,
ठीक है। कैरी एवरीथिंग मतलब कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, जो चीजें ले जाने वाली हैं, लीव अर्ली, मार्जिन लेकर चलो, एंड स्टे साइलेंट, स्टे काम, कोई टेंशन नहीं, कोई आपको ज्यादा सोचने की, ज्यादा प्रोकेस्टिनेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल एंड फीलिंग लाइट, ठीक है। यू डोंट फील लाइक कि आपको एंजाइटी हो रही है या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इन पे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर हाँ जस्ट इन केस आते भी हैं तो उसके लिए भी मैं प्रोटोकॉल लेके आऊँ, व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग पैनिक अटैक्स। सो इफ पैनिक हिट्स यू इनसाइड द एग्जाम हॉल, जस्ट स्टॉप राइटिंग, सबसे पहले लिखना बंद कर दो। जो भी हो ये सब भूल जाओ, मेरा पेपर छूट जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, सब पेपर उस टाइम बिल्कुल लिखना ही छोड़ दो आप, ठीक है। सबसे पहले पेपर लिखना छोड़ दो, अपनी आंखें आराम से बंद कर लो आप, ठीक है। आंखें बंद करके 2 मिनट एकदम से रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्स, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। 3-4 सेकंड के लिए सांस को लो, इनहेल करो, और 3-4 सेकंड उसको मतलब इनहेल करते रहो, फिर 2-3 सेकंड आप उसको होल्ड करो, और धीरे 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 उसे आप 5-6 सेकंड बाद एक्सहेल कर दो, ठीक है। और इसी चीज को आप 2-3 बार रिपीट करो, आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है ये पूरा रीसेट हो जाएगा, फिर आप काम फील करोगे, दोबारा से अटेम्प्ट करो, राइट। सो जस्ट क्लोज योर आइज, just inhale for 4 seconds, just hold for 2 seconds, just exhale for 6 seconds, repeat it 2 times, ठीक है, and then resume giving the paper, right? It resets your nervous system instantly, right? Then moving ahead is final message from my side, students. So I know, students, that at this point of time you are completely prepared, you know the rules, you know the strategy as well, and now it's just कि अब आपका सिर्फ एग्जीक्यूशन मैटर करता है, आप कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करते हो। एक चीज होती है कि आपने एक प्लान बना लिया है कि दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई प्लान, तो दैट प्लान एंड दैट ड्रीम इज एब्सोल्युटली गुड एंड रेडी। नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, ठीक है। जितनी ब्यूटीफुल प्लान है, अगर उतनी ब्यूटीफुली उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ही आपको वो जो रिजल्ट आप चाहते हो वो मिलेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि ये सारी की सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की है, इनसे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। हम आपको क्या पहन के जाना है, आपको क्या वहां पे लेके जाना है, OMR शीट्स के अराउंड, इन्विजिलेटर्स के अराउंड, हमने सारी की सारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें डिस्कस कर ली हैं। नाउ आई एम श्योर कि you are not left with any confusion at all. So with this, students, this was all for today's video, today's session, and I hope कि आपका पेपर अच्छे से जाए. All the very best to you. If you still have any doubt, any confusion, any query, just let me know in the comment section, and I'll be more than obliged to help you, to guide you, right? And team iConta is always there for you in any case of doubt, confusion, query. And all the very best, students. I hope कि all doubts are resolved, all queries are resolved, and all the very best to you from my side. Thank you.